Okay, Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Please take out book page number 1. Yesterday we were reading book page number 1. अब book page number 1 की reading कर रहे थे कि हमारा time over हो गया, so I am going to continue. Okay. Chapter name is Be the Helping Hand. I told you yesterday that meaning of helping hand is to help someone, किसी की मदद करना. That is called helping hand. To be a helping hand for someone, किसी के लिए helping hand बन जाना. ठीक है? To help someone. Faisal and his friends live in the same neighborhood. Underline the word neighborhood. Neighborhood word को underline कर लें and write the meaning on it. Write the meaning of neighborhood. It is living in the same area. एक इलाके में रहने वाले जो होते हैं, एक इलाके में जो रहते हैं वो होते हैं पड़ोसी. Living in the same neighborhood means living in the same area. एक एरिया में रह रहे हैं वो. Got it? Okay. Every Sunday they play cricket. Faisal comes with his ball and wickets. हर Sunday को फैसल जो है वो अपने balls and wickets लेके he come to the playground to play. You should be having your own books. You should be having your pencils to write meaning and put your fingers on your book as I am reading. His friend bring bats, gloves, pad and helmet. I told you yesterday bat के साथ तो आप सभी आपको पता होगा कि what is bat. ठीक है, this boy is holding bat. Gloves, this one is wearing gloves. इसको देखें, ये इन्होंने gloves पहने हुए हैं. This player is wearing gloves. Pad, these are the pads you can see in the picture on your book. If you don't have your book तो मैं आपके लिए थोड़ा सा zoom करती हूँ. ठीक है. These are the knee pads. They are used by the players to wear them on their knees to protect their knees. अपने knees को protect करने के लिए, अपने knees को बचाने के लिए कि अगर वो गिरें तो उनको चोट ना लगे knees पे. So because of this reason they used to wear these knee pads. They help each other by sharing their things and enjoy playing cricket. They spend good time with each other. They share their stuff. ठीक है ना? They share their things. Meaning of share is to allow the other person to use your stuff. दूसरे बंदे को आप allow करते हैं कि वो आपकी चीज़ें जो है वो आपके साथ share कर ले. ठीक है? To allow the other person to use your stuff. Oh, I don't know where I have written the meaning, but I have written it somewhere. Where is it? Oh, here it is. हाँ, to allow other person to use your stuff. ठीक है? So Faisal used to share his bats and whatever stuff जो वो लेकर आता था, wickets, yes. तो वो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है. शेयर का मतलब ये होता है कि आप दूसरे बंदे को अलाउ करें टू यूज़ योर स्टफ़, कि वो आपकी चीज़ें यूज़ कर लें. ठीक है? सो फैसल जो है वो अपने फ्रेंड के साथ वो शेयर करता है. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ शेयरिंग योर स्टफ़ विद अदर्स? दूसरों के साथ आपकी चीज़ें इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? मकसद ये है दैट टू स्पेंड गुड टाइम विद योर फेलोज़, ताकि आप अपने साथियों के साथ अच्छा टाइम गुजार सकें. सही है? ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम गुजारें, इसलिए आप उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो. येस्टरडे आई गेव यू एग्जाम्पल दैट इफ़ you are having something, if you are having some toy at your home and you are not willing to share it with your brother or sister, अगर आपके पास कोई खिलौना है और आप उसको अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों का क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी ना. You will end up
फाइटिंग ईच अदर, आप एक दूसरे के साथ आखिर में क्या करोगे, लड़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। इन दैट वे यू विल नॉट बी हैविंग एनी गुड टाइम, आपका कोई अच्छा टाइम नहीं गुजरेगा। आपको पता है जब हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम अपने कज़न्स के साथ जाएं, हम लोग को अपने कज़न्स के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता है ना, बिकॉज वी हैव फन विद देम, हमें उनके साथ मज़ा आता है। वी लव टू गो समवेयर फॉर आउटिंग विद अवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ जाना अच्छा लगता है, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स की कंपनी को एंजॉय करें, आप अपने कज़न्स की कंपनी को, आप अपने बहन भाइयों के साथ कहीं जाके एंजॉय करें, तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू पीपल शुड शेयर योर स्टफ़। आप लोग एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर करेंगे, वो जो चीज़ें लेकर आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और आप जो चीज़ें लेकर आए हो आप उनके साथ शेयर करोगे। इन दिस वे यू विल हैव गुड टाइम, आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और हमारा जो मज़हब है, अवर रिलीजन इस्लाम, इट ऑल्सो टीचेज़ अस टू शेयर, वो भी हमें यही सिखाता है, हमारा मज़हब भी हमें यही सिखाता है दैट वी शुड शेयर आवर थिंग्स विद आवर फेलोज़, हमें अपने फेलोज़ के साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर इफ़ योर क्लास फेलो हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज लंच बॉक्स, आपका फेलो लंच बॉक्स लाना भूल गया है तो आप उसके साथ लंच शेयर कर लें, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, आपकी फ्रेंडशिप ग्रो करेगी, आपकी और दोस्ती होगी। एंड टुमारो व्हेन यू विल बी नीडिंग हेल्प, अगर कल परसों आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तो योर फ्रेंड विल बी रेडी टू हेल्प यू, वो भी आपकी हेल्प करेगा, उसको याद होगा कि आपने उसकी हेल्प की थी। मगर अगर आप उनकी हेल्प नहीं करोगे तो व्हाट विल हैपन, वो कहेंगे आपने भी मेरी हेल्प नहीं की थी तो अब मैं भी आपकी हेल्प नहीं करने वाला, तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व नहीं हो सकेगी। तो एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम गुजारने के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर अदर, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि कल को वो भी हमारी हेल्प करें। वी शुड शेयर अवर स्टफ़ with others, we should allow the other person to use our things if he or she needs it, कि अगर उसको हमारी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसके साथ शेयर कर लें। So what will be the result of this? The result of this will be that we will have good time together, and secondly if you will need any type of help in future, your friend will be ready and willing to help you, आपका फ्रेंड भी आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी होगा। Got it? चलें जी, back to the book again. Faisal's sister Fatma has a beautiful doll's house. अब फैसल की बहन है फातिमा, उसके पास क्या है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल हाउस, उसके पास एक बहुत प्यारा गुड़िया का जो है वो घर है, ठीक है। आप लोगों में से भी बहुत से के पास होगा। शी कीप्स मैनी स्मॉल डॉल्स इन इट, वो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गुड़ियाएँ रखती है। हर फ्रेंड आयशा डज नॉट ओन अ डॉल्स हाउस, ओन को अंडरलाइन कर दें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ का मालिक होना, ठीक है ना। अब आयशा की फ्रेंड जो है वो किसी डॉल हाउस की मालिक नहीं है। हियर इज़ द वर्ड ओन एंड द मीनिंग इज़ टू हैव समथिंग, आपके पास कोई चीज़ होना। अगर आपके पास कोई चीज़ ओन करती है तो यू ओन इट, ठीक है ना, आप उस चीज़ को ओन करते हैं, आप उस चीज़ के मालिक होते हो, सही है। टू हैव समथिंग। सो आयशा डज नॉट हैव एनी डॉल हाउस, आयशा के पास तो कोई डॉल हाउस नहीं है। शी डज नॉट ओन एनी डॉल हाउस, उसका कोई डॉल हाउस नहीं है, ठीक है, वो किसी डॉल हाउस की मालिक नहीं है, ठीक है। यू कैन सी द उर्दू मीनिंग एज वेल। मालिक होना, किसी चीज़ का मालिक होना, जो चीज़ आपकी होती है आप उसके मालिक होते हो ना। तो लाइक वाइज फातिमा ओन्स अ डॉल हाउस, फातिमा एक डॉल हाउस ओन करती है। शी हैज़ अ डॉल हाउस बट हर फ्रेंड डज नॉट ओन एनी डॉल हाउस, उसकी फ्रेंड के पास कोई डॉल हाउस नहीं है, ठीक है। She often comes to their home and plays with Fatma's doll house, ठीक है। वो क्या करती हैं, ऑफन का मतलब होता है कभी कभी, ठीक है ना। ऑफन कभी कभार वो आ जाती हैं फातिमा के घर और वो फातिमा के डॉल हाउस से खेलती हैं, सही है। बिकॉज फातिमा इज़ रेडी टू शेयर विद हर, फातिमा उसके साथ शेयर करने के लिए रेडी है, और इस तरह से उसकी फ्रेंड उसके घर आती है एंड दे बोथ हैव गुड टाइम टुगेदर। इफ़
फातिमा रिफ्यूज़ टू शेयर इट विद हर फ्रेंड, अगर फातिमा रिफ्यूज़ कर देती है कि मुझे नहीं शेयर करना आपके साथ, व्हाट विल हैपन? आयशा विल नॉट कम अगेन, आयशा दोबारा नहीं आएगी, ठीक है ना, बिकॉज फातिमा इज़ नॉट रेडी टू शेयर हर टॉयज़ विद हर। वो फातिमा जो है उसके साथ अपने टॉयज़ शेयर नहीं करेगी तो फिर आयशा किस लिए आएगी, ठीक है। तो फातिमा उनके साथ चूँकि अपने डॉल हाउस शेयर करती हैं, सो आयशा विजिट्स देम ऑन एंड ऑफ, इसलिए उनको वो विज़िट करती हैं। कम टू द नेक्स्ट पेज क्विकली। अच्छा, फातिमा हैप्पीली लेट्स हर फ्रेंड्स प्ले विद हर टॉयज़, फातिमा अपने फ्रेंड्स को खुशी से खेलने देती हैं अपने टॉयज़ के साथ, ठीक है। वी ऑल शेयर थिंग्स, हम सब एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है। इन स्कूल वी शेयर डेस्क, पेंसिल्स, नोटबुक्स, पेंट ब्रशेज, इरेजर्स, बुक्स एंड इवन आवर लंच विद आवर क्लासमेट्स। We share our food with birds by throwing breadcrumbs for them. कह रहे हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते हैं। We used to share our things. We share, आप अपनी जो डेस्क होती है अपने स्कूल में, आपकी जो डेस्क है उसको हम सब शेयर करते होते हैं, ऐसा ही है ना। We share these desks. आज आपने उस डेस्क पे पढ़ लिया है तो ये नहीं होगा कि कल को आप कहेंगे इस पे अब कोई नहीं बैठेगा सारी ज़िंदगी के लिए, नो। On the other day someone else is going to use that desk, दूसरे दिन पे उस डेस्क को कोई और यूज़ करेगा, ठीक है। अगर इस तरह से हो कि हम शेयर ना करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि हम हर एक बच्चे को उसकी अपनी पर्सनल टेबल और चेयर प्रोवाइड करें और फिर उसके ऊपर वो कभी भी वो किसी और के साथ शेयर नहीं करें। नहीं, हम लोग ऐसे भी करते हैं कि हम एक टेबल को 3-4 लोग शेयर करते हैं। मतलब इन सम क्लासेस यू हैव सीन इन योर स्कूल, यू हैव नोटिस दैट देयर इन सम क्लासेस देयर आर बिग राउंड टेबल्स एंड 3 or 4 स्टूडेंट्स शेयर दैट टेबल। उस टेबल को 3-4 स्टूडेंट्स जो है वो शेयर करते होते हैं। जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा प्ले ग्रुप में, उसमें जो है कौन सी टेबल होती है, उसमें जो राउंड टेबल होती है उसको बच्चे आपस में शेयर करते होते हैं, 3-4 बच्चे, ठीक है। इसी तरह हम अपने पेंट ब्रशेज, इरेजर, ये सब कुछ हम आपस में शेयर करते हैं। वी ऑल्सो शेयर अवर लंच, हम अपना लंच भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब मुबशिर का पता नहीं है मुझे कि मुबशिर अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं कि नहीं। मुबशिर, आप शेयर करते हो? डू यू शेयर योर लंच विद योर फ्रेंड्स? ओके ओके, तो हम सब इस तरह करते हैं। इवन वी टीचर्स, यू हैव नोटिस दैट कि कभी कभी हमें बोर्ड मार्कर भूल जाते हैं तो वी आस्क द अदर टीचर, वी बोरो मार्कर्स फ्रॉम हर, कि आप हमें अपने मार्कर्स दे दें। आई हैव फॉरगॉटन माई एट होम, और मेरे वाले में इंक नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे दे दें। और हम लोग एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करते होते हैं। लाइकवाइज आपके जो फेलोज़ हैं और आप लोग हैं, मैंने आई हैव नोटिस दिस थिंग इन ब्रेक, मैंने नोटिस किया हुआ है कि मैनी स्टूडेंट्स दे यूज़ टू शेयर देयर लंच विद देयर फेलोज़, वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। पहले एक बंदा अपनी कबाब रोटी रखता है एंड दे ऑल ईट इट, पहले उसको वो सारे खाते हैं। देन आफ्टर दैट द अदर पर्सन ओपन हिज लंच बॉक्स, दूसरा बंदा अपना लंच बॉक्स खोलता है और जो फ्रूट्स वो लेकर आया होता है। इन दिस वे यू पीपल हैव वैरायटी ऑफ फूड, आपके पास एक फूड की वैरायटी आ जाती है, आपका पेट भी भर जाता है, आप इंजॉय भी करते हो खाने को, आपकी फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग होती है, ठीक है। अच्छा, वी ऑल्सो शेयर फूड, लुक एट द लास्ट लाइन, वी शेयर आवर फूड विद बर्ड्स बाय थ्रोइंग ब्रेड क्रम्स फॉर देम। breadcrumbs, underline the word breadcrumbs, ठीक है, and write meaning on it. Yes, here it is, breadcrumb. Breadcrumb is a small piece of bread. हम इस तरह करते हैं ना, जो हमारे घर पर हमने अगर कोई परिंदे पाले हुए हैं या अगर हमने पाले हुए नहीं भी हैं, in my house what my father used to do is that जो हमारे पास left over bread होती है ना, उसको स्मॉल पीसेस में करके हम लोग बाहर चिड़िया के लिए डाल देते हैं। इस तरह से वो वेस्ट भी नहीं होती और हम इस तरह से फूड जो है वो बर्ड्स के साथ शेयर करते हैं। और हम उनके लिए बाहर एक बर्तन में पानी भी रखते हैं, वहाँ से वो पानी पीते हैं और वहाँ से वो
फूड भी लेते हैं, ठीक है। जो बचा हुआ हमारे पास बची हुई रोटी होती है ना, तो वो अक्सर ज़ाया हो जाती है, तो हम उसको छोटे पीसेस में करके चिड़िया के लिए डाल देते हैं और इस तरह से हमें सवाब भी मिलता है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट वी शेयर आवर फूड विद बर्ड्स। हम बर्ड्स के साथ अपना फूड शेयर करते हैं। ब्रेड क्रम इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। रोटी के स्मॉल टुकड़े को कहते हैं, छोटे टुकड़े को कहते हैं ब्रेड क्रम, ठीक है। रोटी का ज़र्रा जो होता है, ज़ाहिर है बर्ड्स तो इतनी बड़ी रोटी नहीं खा सकते ना, यू हैव टू मेक अ स्मॉल पीस फॉर देम। आपको उनके लिए स्मॉल पीस बनाना पड़ता है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, गिराना, ठीक है ना। हम थ्रो करते हैं उनके लिए, हम उनके लिए गिराते हैं, उनके लिए फेंकते हैं बर्ड्स के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, थोड़ा सा टाइम मैं दे रही हूँ कि इफ़ एनीबडी ऑफ यू हैव क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए प्लीज़ बी क्विक। जल्दी से माइक अपने अनम्यूट करने और जल्दी से बताना है कि आपने क्या पूछना है या क्या बात करनी है, ठीक है। ओके मुबशिर, योर हैंड इज़ रेज। आई एम फर्स्ट गोइंग टू अनम्यूट यू। जल्दी से अनम्यूट करके बताएं क्या क्वेश्चन है। व्हाट्स द क्वेश्चन? यस मुबशिर, unmute your mic. हेल्पिंग हैंड क्या मतलब होता है? हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है मदद करना, टू हेल्प समवन। देखिए मीनिंग मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखिए स्क्रीन पे देखिए मुबशिर। हेल्पिंग हैंड मीन्स टू हेल्प समवन, किसी की मदद करना, ठीक है। समझ आ गया? ओके गुड, आई एम गोइंग टू म्यूट योर माइक। ओके हरीम, यस, क्विकली आस्क योर क्वेश्चन। योर हैंड इज रेज्ड, व्हाई आर यू रेजिंग योर हैंड? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द लेसन? Okay, I will try to repeat it, but the time is very short. I am already telling you again and again कि time बहुत short है, लेकिन मैं जल्दी से repeat कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है? Okay, okay. Okay, Harim, this lesson is be the helping hand, ठीक है? Be the helping hand means to help someone, किसी की help करना। Yesterday I discussed it with you people. Maybe I don't know, you were absent or you were unable to hear me or what was your problem, but I have explained it. ठीक है? ओके, हेल्पिंग हैंड मीन्स टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना। यू कैन बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर समवन एट योर होम। आप किसी के लिए हेल्पिंग हैंड घर पे भी बन सकते हैं, ठीक है। यू कैन बी ए हेल्पिंग हैंड फॉर योर मदर, उनकी हेल्प करके इन किचन। आप किचन में अपनी मदर की हेल्प करके उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। आप अपने ब्रदर सिस्टर के लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो बाय हेल्पिंग देम इन डूइंग देयर होमवर्क। यू कैन हेल्प योर फादर, यू कैन हेल्प योर नेबर्स। आप अपने नेबर की हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर इफ़ दे नीड एनीथिंग, अगर उनको कुछ चाहिए बाहर से और आप उनको बाहर से वो चीज़ ला दो, आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दो, तो इन दिस वे यू आर हेल्पिंग दैम। सो यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर देम। आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो हेल्प समवन एट स्कूल। यू कैन बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर फेलोज़। अपने फेलोज़ के लिए आप हेल्पिंग हैंड बन सकते हो बाय शेयरिंग योर थिंग्स विद देम। उनको ज़रूरत है, उनके पास नहीं है, तो आप उनको अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर दो, आप उनके साथ शेयर कर लें। सो इन दिस वे यू आर गोइंग टू बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर देम। यू कैन ऑल्सो बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर योर टीचर। आप अपनी टीचर के लिए भी हेल्पिंग हैंड बन सकते हो बाय ओबेइंग हर, उनकी बात मान के, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी इज़ गिविंग। जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रही हैं उनको फॉलो करके आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो। और इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप अपने चीज़ें शेयर करके भी दूसरों की हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। शेयरिंग मीन्स टू अलाउ द अदर पर्सन टू यूज़ योर स्टफ़, कि वो आपकी चीज़ें जो है वो यूज़ कर ले, वो आपकी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल कर ले, दैट इज़ शेयरिंग।
तो अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और आप उनके साथ वो चीज़ शेयर कर लेते हो, यू अलाउ दैम कि ठीक है, यू कैन यूज़ माई पेंसिल इफ़ यू नीड, यू कैन यूज़ माई कलर्स इफ़ यू नीड, so in that way you are going to be a helping hand for them. You can also take care of a person. For example, someone is not feeling good. अगर आप कोई किसी की तबीयत ख़राब है आपके स्कूल में, आपके घर में, तो आप उनका ख़याल रख के भी उनके लिए हेल्पिंग हैंड बन सकते हो. इफ़ दे नीड एनीथिंग, तो आप उनके लिए वो चीज़ ले आएँ. उनके लिए जो इन्वायरमेंट है उसको जो है वो माहौल को अच्छा रखें, क्योंकि जो बीमार इंसान होता है उसको शोर अच्छा नहीं लगता, उसको टीवी की आवाज़ अच्छी नहीं लगती. तो आप एक दिन टीवी म्यूट करके या टीवी ऑफ़ कर दें. आप एक दिन के लिए जो है वो अपने आप पे मुश्किल गुजार के लेकिन दूसरे की हेल्प कर लें. सो दैट कैन ऑल्सो बी एग्जाम्पल ऑफ अ हेल्पिंग हैंड. ठीक है, ओके. The time is over. So tomorrow inshallah, okay, now we will having our next class on next Friday inshallah. So we will start from here. हम यहाँ से start करेंगे. Sharing is important से, ठीक है. We will start from here. Okay, ठीक है. Thank you. Allah Hafiz.